A wonderful morning to each and everyone. Hope you all fine and doing study well at your homes. Dear students, today we are going to study in grammar and the topic is future continuous tense. This is the 22nd number chapter of your grammar book. Page number is 89. All of you got it the page number better? Please come to the topic. What is this? Future continuous tense. Before going to learn this tense, we can remind ourselves about future tense. What is future tense? Everybody, I'm asking to everyone. Future tense is used to express an action that will take place in the time to come. Are you listening? Please listen properly. That future tense is used to express an action. An action means an work, a work, your doing work that will take place in the time to come. टाइम टू कम मीन्स जो समय आ रहे हैं उस समय में प्लेस लेने वाले हैं. इट विल टेक प्लेस in the future. Okay, now come to the future continuous tense. Continuous means non-stop act. Okay, nirantar. So now we will learn this tense with the help of these sentences. Read these sentences. First number, I shall be visiting the library in the evening. Second number, the train will be arriving at 4:30 p.m. Third number, she will be inviting us to the party. So the words printed in board are verbs. Which words? Now shall be, visiting, then will be, arriving, will be, inviting. These are the verbs and they are in the future continuous tense. In this sentence is saying ये words क्या है? Verb है और ये these words showing the future continuous tense. Why? Because they tell us about action that will be going on at a given point of time in the future. Given point of time means which time is going to come. Given point means see here. I shall be visiting. मैं भेंट करने वाली हूँ. In the evening, शाम के टाइम. So time is mentioned that शाम के टाइम I will visiting. Next is will be arriving. What will be arriving? The train. ट्रेन आने वाली है at 4:30 p.m. 4:30 p.m. जो है टाइम उस टाइम में आने वाली है. नेक्स्ट इज विल बी इनवाइटिंग. सी विल बी इनवाइटिंग. वो एक लड़की है जो आमंत्रण करने वाली है आज टू द पार्टी. हम लोगों को इनवाइट करेंगी वो फॉर द पार्टी के लिए. सो एग्जाम्पल शैल बी विजिटिंग, विल बी अराइविंग एंड विल बी इनवाइटिंग. दीज आर द शोइंग द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में पॉइंट कर रहे कि ये जो एक्शन से, ये जो वर्क से, इट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. Time to come. Now come to this line that the future continuous tense tell us about action that will be in progress. Will be in progress. Will be मतलब प्रोग्रेस होने वाले. कब? ना फ्यूचर में. इट विल जब हमारे आने वाले टाइम है ना, जो समय आ रहे हैं हमारी तरफ, उस समय में प्रोग्रेस करेंगे एक्शंस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. आपको बता जाएंगे कि फ्यूचर में उस समय में आपका मीन्स एक्शन होने वाले हैं. तो इट विल शो द टाइम इन द फ्यूचर. ओके, नाउ कम टू द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नाउ व्हाट इज द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? हमने जैसे सिंपल टेंसेस का फॉर्म सीखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का भी फॉर्म सीखा है, तो उस तरह के फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्म. Look at here. We write will be or shall be plus ing form of the verb. Will be and shall be. Simple future का रूल क्या है? Subject plus will plus verb plus object.
वर्ब के पहले आपको क्या लगाना था, विल, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल के साथ क्या लगाओगे, बी, अदरवाइज शैल बी, है ना। फिर क्या लगाओगे, वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाया है ना, व्हेन यू यूज एम इज आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस देन दैट टाइम विथ वर्ब यू पुट आईएनजी। उसी तरह के जब आपने पास्ट कंटिन्यूअस में बात किए हैं तो जब व्हेन यू पुट द वाज एंड वेयर, है ना, दैट टाइम यू ऑल्सो यूज द ing form of the verb. So here also the same, subject, फिर उसके बाद will be and shall be, then verb, verb के साथ आपको क्या लगाना है, ing, then object. Dear students, one thing that we generally use shall with I and we. shall हम किन के साथ लगाते हैं, when we talk about I एंड वी, जब आप खुद के बारे में बात करोगे, आई शैल बी, सी द एग्जाम्पल, आई शैल बी विजिटिंग द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, मैं विजिटिंग, मैं भेंट करने वाली हूँ लाइब्रेरी में, है ना, जब कब, टाइम ना, इन द इवनिंग, जो इवनिंग शाम टाइम आ रहे हैं उसमें। नेक्स्ट सी विल बी, बाकी क्या है, सेकेंड नंबर में देखो, विथ ऑल द अदर प्रोनाउंस एंड नाउन्स, और बाकी ई दोनों को, आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करोगे, विल यूज करेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स as you have done the present continuous, past continuous, that exercises. So here also you do the same, verbs are given to you, you only use the future continuous form. देखो first number I will do for you, listen properly, look here, मैना डैश इन द प्ले, यहाँ पे क्या है, एक्ट है, सो मैना के लिए क्या आएगा, विल, WILL, मैना विल एक्टिंग, विल बी, है ना, फिर उसके बाद बी लगाओ, फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, एक्टिंग, ACTING, मैना विल बी एक्टिंग इन द प्ले, सी विल एक्टिंग करेंगे कब ना, एक ड्रामा में। सेकेंड नंबर, फादर डैश द कार, यहाँ पे वर्ब में क्या है, ड्राइव, तो आपको यहाँ पे लिखना है फादर विल बी, ड्राइव है तो ड्राइव का आईफोन क्या होगा, DRIVING, फादर विल ड्राइविंग द कार। थर्ड नंबर, आवर ट्रेन, है ना, आवर ट्रेन डेज द स्टेशन सून, रीच है वर्ब में तो यहाँ पे क्या आएगा, आवर ट्रेन विल बी रीचिंग द स्टेशन सून। ओके, इस तरह से रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस you do it yourself and send it back to the WhatsApp group for checking. So dear students, I hope you have understood about this topic. So thanks a lot all of you to watching this video.